Hello and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing fine. Today we are going to talk about one of the poem that's in your prescribed book. We are going to talk about the poem The Bangle Seller that is written by Sarojini Naidu. So we will just do a reading and then after that we will start understanding what the poem is about. So let's begin. The Bangle Seller. The bangle seller carried loads of bangles to sell at the fairs. The bangles are delicate, bright, and colorful ornaments which add to the beauty of their bearers and serve different purposes on different occasions. As a woman passes through the different stages of her life from childhood to old age, the color and design of her bangles also change accordingly. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives? Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as a mountain mist. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Some are like field of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of a marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire. Tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. Some are purple and gold-flecked grey, for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the God at her husband's side. The poem is written by Sarojini Naidu. So we will just try to understand the introduction of the poem and what the poem is about. The bangle sellers, who actually these bangle sellers are. The poet is trying to give us the introduction that bangle seller hota kaun hai. The bangle seller carries loads of bangles. Bangle seller जो है उसके पास बहुत सारी bangles होती है जो कि वो एक मेले में बेचने के लिए आता है. द बैंगल्स आर डेलिकेट. तो बैंगल्स क्या होती है? बैंगल्स बहुत नाजुक होती है. उनका कलर जो है वो बहुत ब्राइट होता है और कलरफुल होता है. कलरफुल ऑर्नामेंट्स, दैट मीन्स बहुत सारे कलर्स उनमें इंक्लूड होते हैं जो कि जो इंसान उसको पहनता है वो उसके खूबसूरती में चार चांद लगाता है. एंड सर्व डिफरेंट पर्पसेस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. और इन बैंगल्स का एक मकसद होता है लेकिन डिफरेंट ओकेजन्स के हिसाब से. एज अ वुमेन पासेस थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ लाइफ, एक औरत जो है वो बहुत सारे फेजेस से गुजरती है अपनी ज़िंदगी में. उसी हिसाब से उसकी चूड़ियों का रंग भी बदलता रहता है. द कलर एंड डिज़ाइन ऑफ अ बैंगल्स ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली. और कलर और डिज़ाइन जो है वो जूँ ही आगे बढ़ती जाती है उसी के हिसाब से उसकी कलर भी चेंज होता है और उसका डिज़ाइन, उसकी चूड़ियों का डिज़ाइन भी चेंज होता है. सो द बैंगल सेलर जो है दैट इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू. ये किसने लिखी है? ये सरोजनी नायडू ने लिखी है. इसमें हम देखते हैं कि इंडियन वुमेन जो है उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आती है, कौन कौन सी स्टेजेस की चेंजेस आती है. और ये बैंगल्स जो है वो डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स जो है वो बैंगल सेलर क्यों बेचता है, और अगर वो बेचता है तो उसने कौन सी बैंगल्स जो है किस स्टेज पे रखी है, कौन सी बैंगल्स जो है जो उसने छोटी लड़कियों के लिए रखी है, कौन सी बैंगल्स उसने एक मैरिड लड़की के लिए रखी है, कौन सी जो है वो अनमैरिड के लिए रखी है, और कौन सी उसने एक मिडिल एज्ड वुमेन के लिए रखी है. और ये पोम जो है इट इज़ इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ पोम्स. एक कलेक्शन है पोम्स का जिसका नाम है द बर्ड ऑफ टाइम, जो कि पब्लिश हुई है 1912 में. कब पब्लिश हुई है? 1912 में. जो पब्लिश हुई है 1912 में, उसी में एक पोम है आपकी द बैंगल सेलर.
ये पोम जो है ये हमारे सामने एक सोशल, रिलीजियस और सिंबॉलिक वैल्यू रखती है बैंगल्स का, कि इंडियन कल्चर में इसकी सोशली अहमियत क्या है, रिलीजियसली अहमियत क्या है और क्या इसका सिंबॉलिक वैल्यू है। इंडिया में बैंगल्स जो है वो एक मैंडेटरी ऑर्नामेंट है एक औरत के लिए, और ये क्या दिखाता है कि एक वुमेन जो है वो जब चूड़ियाँ पहनती हैं वो उसमें पीस है, मेंटल पीस उसमें है कि नहीं, हैप्पीनेस उसमें है कि नहीं, वो शांति से रह रही है कि नहीं। चूड़ियाँ एक औरत का नेचर दिखाती है, नेचर प्रेजेंट करती है, क्योंकि अब अगर इंसान का मेंटल पीस क्रेव होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो औरत जो है वो चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करेंगी। लेकिन जब एक औरत खुश होगी, जब एक औरत को खुशी महसूस होगी तैयार होने में, ऑब्वियस सी बात है कि वो औरत खुश होगी। ये पोम जो है ये डिस्क्राइब करती है कि एक वुमेन में कितनी स्टेजेस की कितनी चेंजेस आती है, जो ही उसकी लाइफ में स्टेजेस बढ़ते जाते हैं उनमें कैसी चेंजेस आती है, और उसी हिसाब से एक बैंगल सेलर ये स्टेजेस के हिसाब से उसने कैसे ये चूड़ियाँ चुन के रखी है। और जो स्पीकर है पोम का वो बैंगल सेलर ही है, जो कि बैंगल्स बेचता है। कहाँ पे बेचता है? टेम्पल फेयर में। और वो क्या करता है, दे कॉल आउट टू द पीपल, वो बुलाता है लोगों को, और वो उनको इसलिए बुलाता है कि ताकि वो अपनी बेटियों के लिए, बीवियों के लिए क्या लाए? चूड़ियाँ लाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, बैंगल सेलर जो है वो एक लिरिकल पोम है। कितनी लाइंस है इसमें? 24 लाइंस है इसमें। एक तो ये लिरिकल पोम है, और इसमें 24 लाइंस है, और ये 24 लाइंस जो है 4 स्टेंजास है इसमें, और 4 स्टेंजाज में कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5 6 लाइंस है। 4 स्टेंजाज में, हर स्टेंजा में आप देखेंगे कितनी लाइंस? 6 लाइंस, ठीक है। और हर स्टेंजा में 3 राइमिंग कपलेट्स है। कितने राइमिंग कपलेट्स है? 3 राइमिंग कपलेट्स है, और ये एक सिंपल राइम स्कीम। बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ पे पोएटिस जो है वो बताती है, यहाँ पे बैंगल सेलर जो है वो खुद एक स्पीकर है। बैंगल सेलर बताता है कि हम लोग बैंगल सेलर है जो ये शाइनिंग लोड्स का मतलब हम जो क्या लेते हैं? बैंगल्स जो है वो एक टेम्पल फेयर पे ले रहे हैं। दे कैरी द शाइनिंग लोड्स, वो ये शाइनिंग लोड्स जो है वो एक टेम्पल फेयर में बेचने की कोशिश करते हैं। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? और यहाँ पे बैंगल सेलर जो है वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि कौन है वो जो क्या ख़रीदेगा, जो ये डेलिकेट, नाजुक सी और ब्राइट, वाइब्रेंट सी और रेनबो टिंटेड मतलब जिसमें बहुत सारे कलर्स हो, और सर्कल्स ऑफ लाइट। सर्कल जो है वो बैंगल की शेप होती है, तो वो बताता है कि कौन लेगा ऐसी बैंगल्स मुझसे। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स, और जिनको देख के क्या होता है? जिनको देख के हमें खुशी महसूस होती है, जिनको देख के एक ब्राइटनेस सी आती है, जो ये शाइनिंग टोकन्स है एक रेडियंट लाइफ के, वो कौन लेगा? अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए, या अपनी बेटी के लिए, या अपनी बीवी के लिए। और दूसरे स्टेंजा में समा मीट फॉर अ मेडन्स रिस्ट हेयर मीन्स एन अनमैरिड वुमेन। दिस वाज द स्टेंजा जहाँ पे बैंगल सेलर जो है वो अपने बैंगल्स को के बारे में बात कर रहा है कि उनकी शेप कैसी है, वो कहाँ पे बेचेंगे ये, और उनको किन के लिए ये बेचने जा रहे हैं। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में हम बात करेंगे कि एक इंडियन वुमेन जो है वो किन स्टेजेस से गुज़रती है।
सेकंड स्टेंजा में बैंगल सेलर्स, सेकंड स्टेंजा जो है पोइट जो है वो बात करती है डिफरेंट कलर्स के बारे में। डिफरेंट कलर जो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, तो यहाँ पे बैंगल सेलर ने एक अनमैरिड वुमेन के लिए किस कलर की बैंगल्स रखी है, सिल्वर और ब्लू कलर की बैंगल्स रखी है, जो कि बिल्कुल कैसी दिखती है, जैसे माउंटेन पे, जैसे एक पहाड़ पे धुंध होती है और वो धुंध की रिफ्लेक्शन से ये दो कलर्स जो बनते हैं, वैसी ही बैंगल्स उसने एक किसके लिए रखी है, उसने एक अनमैरिड लड़की के लिए रखी है। सम आर फ्लश लाइक द बड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्राउ ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम, और कुछ जो होते हैं, कुछ अनमैरिड गर्ल्स जो है उसको इसने रिप्रेजेंट किया है एक फ्लावर के साथ, एक ऐसा फ्लावर जो अभी पूरा खिला नहीं है लेकिन खिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहाँ पे, एक वुडलैंड स्ट्रीम के पास जो बिल्कुल नया है, ग्रीन कलर का है, जिसमें नए नए लीव्स आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फ्लश्ड, वो जो बर्ड है वो ड्रीम करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ये जो स्पीकर है वो बताता है कि यहाँ पे एक लड़की जो जब वो अपनी शादी के बारे में सोचती है, जब वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचती है, वो जो है वो ग्लो करने लगती है, उसके चीक्स पे एक ग्लो सा आने लगता है और उसके गालों पे एक शाइनेस आती है, जिसकी वजह से वो रेड का, उसके गाल जो है वो रेड कलर के हो जाते हैं। और वो जो है वो जब वो सपने देखती है तो यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है छोटे छोटे लीव्स के साथ जो कि अभी अभी निकले हैं। और थर्ड स्टेंजा में पोएट जो है वो बात करती है किसके बारे में, एक मैरिड लड़की के बारे में। Some are like fields of sunlit corn meet for a bride of a bridal morn. Some like the flame of a marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, twinkling luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. यहाँ पे पोएट जो है वो बात करती है बैंगल्स के बारे में, जो एक ब्राइड जो है वो अपनी शादी के दिन पहनती है। और ये कलर जो है ब्राइडल बैंगल्स का वो इसने रखा है, यहाँ पे रखा गया है वो येलो और रेड कलर का। येलो फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, और ब्राइड, जो ब्राइड मीन्स दैट मीन्स शी इज़ गोइंग टू वेयर रेड, वो जो है। और यहाँ पे फ्लेम ऑफ अ मैरिज जो है वो कौन सा कलर होता है इसका, फ्लेम का रेड कलर, वहाँ से बहुत सारी आग जब निकलती है तो दैट मीन्स हमारे पास दो कलर की बैंगल्स है, एक तो येलो कलर की और रेड कलर की। यहाँ पे येलो और रेड हमें कैसे पता चलता है, व्हेन द पोएट हेयर इज टॉकिंग अबाउट द फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द येलो color. When she is talking about the flame of a marriage fire, that means she is talking about the red color. ये बैंगल्स जो है ये क्या है, ये टिंकलिंग है, ल्यूमिनस है, ये जो है ये एक लाइट रिंगिंग सा साउंड प्रोड्यूस करती है, शाइनिंग है, शाइनिंग कलर है इनका, और टेंडर और क्लियर है, जैसे एक ब्राइडल लाफ्टर होता है। जैसे एक ब्राइड जो है वो अपनी नई लाइफ की स्टार्ट एक खुशी से करना चाहती हैं, और यहाँ पे बताया गया है लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टेयर। लास्ट स्टेंजा में, फाइनल स्टेंजा में यहाँ पे पोएट जो है वो बताता है कि एक बिटर और स्वीट ट्रांजिशन उसकी लाइफ में होने जा रहा होता है। बिटर क्यों, क्योंकि उसको एक ऐसा घर छोड़ना होता है जहाँ पे वो पली बड़ी होती है, और स्वीट इसलिए क्योंकि वो एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रही होती है, जहाँ पे वो एक नया घर बसाएगी जिसके उसने सपने देखे होते हैं, क्योंकि उसकी शादी हो रही होती है। और दूसरे स्टेंजा में हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी उस चीज़ के उसने सपने देखे होते हैं। यहाँ पे रोना इसलिए आता है उसको क्योंकि उसको अपने माँ बाप को, अपने पेरेंटल हाउस को जो है वो अलविदा कहना होता है। Now in the last stanza the poet is talking about the middle-aged women, middle-aged married women, एक middle-aged but शादीशुदा औरत के बारे में बात होती है। ये स्टेंजा जो है ये हमें इंसाइट देता है, एक कंप्लीट वुमेन के बारे में,
एक ऐसी औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखा होता है, एक अनमैरिड लाइफ, एक मैरिड लाइफ, और एक वहाँ पे खड़ी हो जाती है जहाँ पे एक कंटेंटेड और काम औरत वो बनी होती है। ये आइडियल वाइफ जो है वो अपने बेटों को पालती है और अपने घर का ख्याल रखती है इन अ फ्रूटफुल वे, एक ऐसे मैनर में जहाँ पे उसके पीछे जो जितने लोग भी खड़े होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और शी मस्ट वर्शिप गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। और आइडियल वुमेन एक ऐसी वुमेन होती है जो अपने हस्बैंड के साइड पे बैठ के पूजा कर सके। द कलर ऑफ द बैंगल्स, ये जो कलर है बैंगल्स का, वो ना तो इस स्टेंजा में ब्राइट दिखाया गया है ना तो वो ज़्यादा कलरफुल दिखाया गया है। ये इसमें बैंगल्स का कलर पर्पल और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे दिखाया गया है। पर्पल और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे दिखाया गया है जो रिप्रेजेंट करता है एक कंटेंटेड लाइफ, जहाँ पे एक इंसान